आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും തേജസ്വി യാദവിന്റെയും പടയോട്ടമാണ് ബീഹാറിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നപ്പോൾ ബീഹാറിൽ ബിജെപി നേരിടുന്നത്. ജൂൺ 4-ന് വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ ബീഹാറിൽ നിന്ന് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ അവസരവാദ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ജനങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. നിലവിലെ സൂചനകൾ വെച്ച് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാസഖ്യത്തിനറെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ബീഹാറിലെ ബക്തിയാർപൂരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ തേജസ്വി യാദവ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനാകാത്തതിനാൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. കടുത്ത വേദനയിലും കീഴടങ്ങാത്ത മനസ്സുമായി പ്രവർത്തകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന വാക്കുകളുമായി കളം നിറയുന്ന തേജസ്വി യാദവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുക. തൊട്ടടുത്തിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലും തേജസ്വിയുടെ ആവേശത്തോടെയുള്ള പ്രസംഗം ആകാംക്ഷയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിടക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭീഷണിക്ക് പുല്ലുവില നൽകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു തേജസ്വിയുടെ മറുപടി. ഒരാൾ ബീഹാറിലൂടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരക്കാരെല്ലാം ജയിലഴി എണ്ണാനുള്ളതാണെന്നുമുള്ള മോദിയുടെ ബീഹാറിലെ പ്രസംഗത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു തേജസ്വി യാദവ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും ഇടതുപാർട്ടികളും ബീഹാറിൽ കൈകോർത്തതോടെ അപ്രതീക്ഷിത ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിതീഷ് കുമാറിന്റെയും ബിജെപി നേതാക്കളുടെയും സമനില തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടുവേദന കാരണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ടും കടുത്ത വേദനയെ അവഗണിച്ചാണ് തേജസ്വി യാദവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ ഉടനീളം പങ്കെടുത്തുവരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത് പരാജയ ഭീതി കൊണ്ടാണെന്നും അതുകൊണ്ടെന്നും അനിവാര്യമായ തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും തേജസ്വി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആവേശത്തോടെയാണ് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. താൻ ദൈവദൂതനാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ചും കടന്നാക്രമിച്ചുമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗവും. കഠിനമായ നടുവേദനക്കിടയിലും തേജസ്വി യാദവ് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതെങ്ങനെയെന്ന് കാണാം. आप लोगों को हम कहना चाहते हैं, बैठ के बोलना पड़ रहा है। बैठ के इसलिए बोलना पड़ रहा है, मेरे हड्डी में चोट है। डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। इस अवस्था में लगभग 230 से भी ज्यादा सभाएं हमने की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोदी जी भाजपा के लोगों का जो हिडन एजेंडा है, देश के संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, तो इस अवस्था में तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है, राज किया, बिहार को आपने क्या दिया? आप बताओ, प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग
बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे। इतनी मर्यादा, गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कोई बताओ अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गए अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, दो बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। हमने 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक कर्मियों को 4.5 लाख जो थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। जाति आधारित गणना हमने कराया। 75% आरक्षण हम लोगों ने कराया। कोई भी भाजपा शासित राज्य में अगर 75% हो तो हमको बता दो। ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। और हम आप लोगों को कहने आए, 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। और अनाज देने की शुरुआत यूपीए के समय से हुई। फूड सिक्योरिटी बिल तब आया। तो ये सच्चाई है, ये भी जानने की जरूरत है। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी। और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। बस आप सब लोगों से यही अपील है, एकजुट होकर के रहना है। बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना? अंशुल भाई को जिताना है ना? पूरा आशीर्वाद है ना? तो ज्यादा समय नहीं लेते, राहुल जी को भी बोलना है। और आप सब लोगों के तरफ से खुसरूपुर की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो इनको पूरा विश्वास दिलाइए। हम बोलेंगे चुपचाप, आप बोलना हाथ छाप। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते।
इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अरे बन रही है कि नहीं बन रही? इंडिया की सरकार बन रही है ना। उसके बाद कौन क्या कहां जाएगा वो जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।